بین دو تفکر مدرن و سرگردانی تاکید تو روی سرگردانی و تردید مهمترین قسمت رویه است. رنج باشه، محرومیت باشه، فرق باشه. زنی که حتما در طی لذت زندگی تناقض مجدد و نواها این تصویر نشون دهنده شوخ سرگردان یه شوهر معتاد باشه، یه شوهر مقتنع باشه، رنج باشه، محرومیت باشه. تناقض مجدد این تصویر نشون دهنده بحران ذهنی اما متاسفانه راه تفکر مدرن سنتی از این بحران ذهنی انتخاب می‌کند. مانع سرگردان تاکید تو روی سرگردانی تمام فضای جامعه تفکر مدرن و سنتی. میں نے بجلی والوں کو فون کیا ہے. ہوا کی وجہ سے اکثر گلیوں کی لائٹیں کٹ گئی ہیں. مشرق، مغرب، شمال، جنوب. تو ان کی ٹیم ہمارے علاقے میں کب آئے گی دیکھنے؟ ہمارے علاقے کی طرف بندے بھیجے گئے ہیں، پہنچنے والے ہوں گے. ان لالٹینوں میں تیل موجود ہے نا کمالی؟ جی صاحب موجود ہیں. بڑی مہربانی. جناب خدا کے لیے معاف کیجیے گا، آج آپ کو دروازے پر کھڑا رہنا پڑا. کل رات سے میرے گھر کی چھت ٹپک رہی تھی. رات بھر چھت ٹپک رہی تھی اور تم صبح اٹھ کر یہاں آ گئے؟ جناب آنا پڑا، میری ڈیوٹی ہے. ارے بابا ایسا ہوا کرے تو مجھ سے پوچھ لیا کریں کہ آنا ہے یا نہیں، اور ابھی چلے جائیں جا کے چھت دیکھ لیں. جی جناب. ابھی کوئی کام تو نہیں ہے نا؟ کوئی کام ہوگا بھی تو میں خود دیکھ لوں گا، آپ ابھی جائیں. جی جناب، آپ کی اجازت سے. خدا حافظ. کمالی. جی صاحب. پیسے چاہیے آپ کو؟ نہیں صاحب، ابھی تو تنخواہ ملی ہے. تکلف مت کیجیے گا. صاحب نہیں، کیسی تکلف؟ سنو. جی حضور. آپ کو ایک بات بتانی تھی. آج میرے ساتھ ایک عجیب اتفاق ہوا ہے. کیسا اتفاق صاحب؟ ایسا اتفاق کہ مجھے لگتا ہے جیسے وہ میری زندگی میں بار بار پیش آنے والا ہے. کوئی اچھا اتفاق ہے حضور؟ ہاں. خدا کرے ایسا اتفاق بہت زیادہ ہو. عظیمی معافی چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں غلط جگہ ہے. میں نے آپ کی کتاب کے 20 صفحات میری کتاب آپ کے پریس کے لیے اگر آپ کو فرصت ملے تو ایک بار ضرور پڑھ لیجیے. موقع ملا تو دیکھ لیں. عظیمی صاحب آپ جو لکھیں گے میں اس پر دستخط کر دوں گی. جی غلط ٹائم پہ فون کیا میں نے. اچھا آپ ہیں؟ سو رہی تھی کیا آپ؟ نہیں بس وہ. معاف کریے گا. کس لیے؟ آپ کو اس وقت جگانے کے لیے. کوئی بات نہیں. ایگریمنٹ لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھ لوں. میں حاضر ہوں، فرمائیے. آپ کے شناختی کارڈ میں آپ کا سرنیم کیا لکھا ہے؟ عظیمی ہے. بس. بس؟
और वालिद का नाम? परवेज। तारीख पैदाइश? 15 मार्च 1966। वाह क्या बात है, मैं भी 15 मार्च को ही पैदा हुआ हूँ। किस साल में? 1960। काफी जवान लगते हैं। जी थोड़ा बहुत। बात पूरी हो गई? नहीं नहीं नहीं। आपका कार्ड नंबर क्या है? 1694। एड्रेस? नियावरन, शहीद रुस्तमी रोड, ब्लॉक नंबर 6। 2 सफ़ों पर मुश्तमिल आपके हालात ज़िंदगी चाहिए, 2 अदद तस्वीरों के साथ। हालात जिंदगी यानी तालीम और अपने खानदान के बारे में? जी हाँ, इसके अलावा वो कहानी और लोग जिनसे आप मुतासिर हुई और आपको इस शोबे की तरफ लाने पर मजबूर किया। मैं अपने बारे में कुछ नहीं लिख सकती, आप ही लिख दें। ठीक है, तो अभी लिखवा देंगी? नहीं, मैं एक कैसेट में टेप करवा दूंगी। हाँ ये ठीक है। मैं 9 बजे एग्रीमेंट पर आपके पास दस्तखत लेने आ रहा हूँ, उसी वक्त कैसेट भी ले लूंगा। यानी 1 घंटे बाद? कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। खुदा हाफिज। रुको रुको, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकेले हो? हाँ अंदर आओ। वन टू थ्री टेस्टिंग। क्या हुआ मेहरी? हामिद मेरी मदद करो, मैं फैसला नहीं कर पा रही। कैसा फैसला? हमीद कहता है कि हम बच्चा कहीं से गोद ले लेंगे और फिर उसकी परवरिश करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। फिर तुम क्यों परेशान हो? मुझे डर है इस बात का कि चंद साल गुजरने के बाद वो बदल ना जाए। वन टू थ्री टेस्टिंग। बात ये है कि मसला उसका नहीं, मसला मेरा है। ये मसला तुम दोनों का है मेरी बहन। देखो मेरी बहन, अगर मियाँ बीवी दोनों खुद से चाहें तो एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, और अगर कोई मुश्किल पेश आए तो दोनों के लिए बराबर है। हमीद थोड़ा जज्बाती जरूर है मगर उसूली आदमी है। मैं उसको कॉलेज के जमाने से जानता हूँ। जितने सालों से मैं उसे जानता हूँ तुम नहीं जानती। अभी तक फूफो को बताया भी नहीं। अच्छा, तो तुम इसलिए परेशान हो कि फूफी कहीं इस काम की मुखालफत ना करें। जी जाहिर है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है मेहरी। तुम अभी और इसी वक्त जाओ और फूफी से जाके बात करो और सारी बातें एक एक करके उनको बता दो। क्या मैं खुद चली जाऊं वहाँ? हाँ तो क्या हुआ? नहीं जा सकती हामिद, शर्म आती है मुझे। क्या मतलब मेहरी, क्यों नहीं जा सकती? देखो हम ऐसा करते हैं, एक साथ वहां चलते हैं। अब तो कोई मसला नहीं। अब ठीक हो? तुम नहीं चलोगे? मैं चलूं क्या? मुझे नहीं पता। अगर ना चलूं तो बेहतर है। वो क्यों? शायद फूफी तुम्हें मेरे सामने डांटे और तुम्हारी बात का जवाब ना दें।
ٹھیک ہے پھر میں چلی جاتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے. حامد کیسا ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے. السلام علیکم پھوپھی جان. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں. اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ نہیں مجھے تھوڑا کام سے جانا ہے، میں چلتا ہوں. پھوپھی جان مہری آپ سے صرف ملنے نہیں آئی ہے بلکہ کچھ خاص موضوع پر بات کرنے آئی ہے نا مہری؟ یہ آپ کی رائے جاننا چاہتی ہے. اچھا میں چلتا ہوں، خدا حافظ. خدا حافظ. اچھا تو وہ خاص موضوع کیا ہے؟ حمید کہتا ہے کہ بچے کو گود لے لیتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. تو تم نے بات مان لی؟ میں آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام. میری تاریخ پیدائش تو معلوم ہے نا؟ جی ہاں. میری کوالیفیکیشن ماسٹرز کیا ہوا ہے میں نے تہران یونیورسٹی سے. بہت خوب. ایک آئل کمپنی میں انجینئر تھے میرے بابا. فنی کتابوں کے عاشق تھے وہ. کہانی اور افسانے بالکل بھی پسند نہیں تھے انہیں. عجیب بات تھی. لیکن امی اس کے برعکس فزکس کی لیکچرار تھیں لیکن کہانیاں پڑھتی تھیں. اچھی بات ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں 8 سال کی تھی تو ایک کتاب تھی بنوایان. اسے امی کی لائبریری سے میں لے آئی. پوری کتاب تو میں پڑھ نہ سکی لیکن اس کا ایک چیپٹر مجھے آج بھی یاد ہے جس کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے. ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ ساحل کے کنارے پر پہنچا ہے اور پھر وہ گیلی مٹی پر بیٹھ جاتا ہے. جلد نمبر 2 کتاب نمبر 3 اور صفحہ نمبر 7. میں جب 9 سال کی تھی تو مہرداد اور ساناز کی انقلابی کتابیں ہمارے گھر میں بھر گئیں. میں نے ایک پھول خریدی، خرمگس لی، سفید دانت خریدی. ایسی کتابیں تھیں جو مجھے بالکل پسند نہیں تھیں تب بھی پڑھنی پڑتی تھیں. میری طرح. لیکن مہرداد اور ساناز مجھے ایسی کتابیں پڑھنے پر مجبور کرتے. اسی سال خرمگس کتاب کے 50-60 صفحے میں نے پڑھ لیے مگر اس پہلوان کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے. جوزف ماردینی. خیر جانتی ہوں جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ آپ کے کام کی نہیں مگر میں نے کہہ دیں. اچھا کیا آپ نے. جب مہرداد ایران سے باہر چلا گیا تو ساناز نے اپنی تمام انقلابی کتابیں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دی. اس کے بعد ساناز نے کوئی کتاب نہیں خریدی اور نہ کوئی کتاب پڑھی یہاں تک کہ اس نے شادی کر لی اور وہ ایک مترجمہ بن گئی. اس کی سوچ بھی بدل گئی. جب وہ مترجمہ ہوئی تو میں 17 سال کی تھی. میری ہینڈ رائٹنگ اچھی تھی. اسی وجہ سے میں مجبور ہوئی کہ ساناز کا ترجمہ شدہ مواد لکھ لوں کیونکہ اس کی رائٹنگ کیڑے مکوڑوں والی تھی. اس کا ترجمہ لکھنے کی عادت نے مجھے مجبور کیا کہ میں لکھنے پڑھنے کے میدان میں قدم رکھوں. اور کچھ نہیں. اچھا یہ بتائیں کون سی کہانی اور افسانے نے آپ کو متاثر کیا؟ اوہ معاف کیجیے گا ایک اور بات یاد آئی. معاف کیا. 1 سال بعد 2 چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھی میں نے وہ بھی اگست کے مہینے میں جشن باسعادت آل احمد. ان کہانیوں سے میں بہت متاثر ہوئی
बस यही है। बस इतना काफी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलें हम? जी। शीरीन, डिनर पर चलने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी आप बोले, मैं आपकी बातों को सुन रही हूँ। जानती हो, पुराने लोगों की तरह पुरानी कहानियों का मैं भी आशिक हो गया हूँ। आप आशिक हो गए हैं? हाँ। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसी आवाज के आशिक हुए हैं? नहीं। झूठ मत बोलें, आप फंस गए हैं। होशियारी, सब कुछ इतनी आसानी से बता दूं? अजीमी साहिबा, इन तमाम एहसासात के बावजूद आप क्या पढ़ना पसंद करेंगी? सच तो यह है कि इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कहूँ। आप जज्बाती हो गईं? हाँ शायद। क्या आपको ये मालूम था कि आप इस कदर पजीराई मिलेगी? नहीं, अंदाजा नहीं था। जी अच्छा, हमारे पास 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं। मैं इस 1 मिनट में कुछ पूछे बगैर खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। आप जो कुछ कहना चाहती हैं कह सकती हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर कुछ शख्सियात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनकी बदौलत मेरी ये कहानी शाये हुई। उनका शुक्रिया जो अगर मेरे पास ना होते तो ये कहानी इतनी सलीस ना बन पाती। उनका शुक्रिया जिनको उनका नाम लेना पसंद नहीं है, अगर पसंद होता तो इस किताब में हर जगह उनका नाम होता। जिन्होंने इस किताब को पढ़ा और मुझे सराहा, उन सबका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छी लड़की है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फिर से हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम के तसलसल के साथ। हेलो, जोर से बोलो। हमीद, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम कहाँ हो? वहां ये शोर कैसा हो रहा है? अस्पताल? वहां क्या कर रहे हो? अब्बू? कब? कितने बजे? ओह, अच्छा, मैं अभी पहुंचता हूं। बस मैं आ रहा हूं। खुदा हाफिज। कमाली? जी हुजूर। मेरे अब्बू को दिल का दौरा पड़ा है, उनको अस्पताल लेकर गए। कौन से अस्पताल? शरीयती, ये पकड़ो। तुम साथ नहीं चल सकते। अजीमी साहबा यहाँ आने वाली हैं इस एग्रीमेंट पे दस्तखत करने। जी। जब वो दस्तखत कर लें तो तुम दरवाजा बंद करके यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
साहब यहाँ पर नहीं है, अस्पताल गए हुए हैं। अस्पताल क्यों गए हैं? कोई बीमार है? उनको फोन आया था कि अब्बू की तबीयत खराब है। कौन से अस्पताल? शरीयती। ओह अच्छा, ये रख ले, मेहरबानी होगी। अजीमी साहिबा, गीती के सेकंड एडिशन के एग्रीमेंट तैयार हैं, अब दस्तखत कर दें। ये एग्रीमेंट पर मुनासिब वक्त नहीं है दस्तखत करने का। जी मैडम। सुने जरा ये बताइएगा कि यहाँ से रिसेप्शन किस तरफ है? जी अंदर ही है, आप अंदर जाएंगी तो आपको नज़र आ जाएगा। डॉक्टर मुसफ़िर बराए मेहरबानी इमरजेंसी में तशरीफ़ ले आइए। डॉक्टर मुसफ़िर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इमरजेंसी में तशरीफ़ ले आइए। सुने मोहतरमा। जी फरमाइए। एक मरीज है यज़दान पनाह फैमिली के, नाम नहीं पता मुझे, उन्हें कहाँ ले गए हैं? वो वहाँ बैठे हैं, आप उनसे जाके पूछें। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, क्या आप यज़दान पनाह के साथ आई हैं? आप मराल अजीमी है ना? जी। मैंने आपकी तस्वीर आपकी किताब में देखी है। अच्छा, लेकिन आप कौन? मैं महरी हूँ, हामिद की बहन, और ये हमीद मेरे शौहर। आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई और आपके नॉवेल बहुत ही दिलचस्प हैं। शुक्रिया। शीरी यहाँ आओ। ये मेरी बहन है और ये मराल अजीमी। अस्सलामुअलैकुम। हम सब काफ़ी दिनों से आपसे ही मिलना चाह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे शौहर जलाल हैं। जब हमने आपकी गीती पढ़ी तो हम आपसे मिलना चाह रहे थे। शुक्रिया आपका। अगरचे ये जगह मुलाकात के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे मिल रही हूँ। हामिद अब्बू के साथ हैं आईसीयू में। अब उनकी तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है, खतरे से बाहर हैं। मगर फिर भी हम सब बहुत परेशान हैं। आईसीयू किस तरफ है? हाँ ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे। मैं देख कर आती हूँ। तुम उनके साथ जाओ। हमीद जाओ, जाकर उनसे कह दो। अजीमी साहिबा, अजीमी साहिबा, अजीमी साहिबा, मेरी बात सुनिए। रुकिए, आईसीयू में किसी को जाने की इजाजत नहीं देते। हामिद भी बहुत मुश्किलों के बाद गया था। मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? मैं डॉक्टर मस्तूफी की बहन हूँ। मोहतरमा, अभी मिलने की इजाज़त नहीं है, आप बाहर आ जाइए। डॉक्टर मस्तूफी डॉक्टर रसूली के भांजे हैं। रसूली साहब तो है ना? जी। बहुत बेहतर, तो फिर मेहरबानी करके आप जाइए।
बाबा कुछ दर्द बेहतर हुआ आपका? हाँ, कुछ बेहतर हूँ। खुदा का शुक्र है। मेरे कपड़े मंगवा लो, मैं ठीक हूँ, बस घर जाना है। बाबा आप आराम करें, अभी आपको आराम की जरूरत है। लेकिन मैं ठीक हूँ। डॉक्टर खुद कहेंगे आप ठीक हो गए हैं, चले जाएं। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर ने भी आपको एडमिट करने का कहा है, इसलिए आप अभी नहीं जा सकते। तुम डॉक्टर को बुलाओ। जिद ना करें अब्बू, आज आप यहाँ पर। कहा है डॉक्टर को बुलाओ। मैं बुला कर लाती हूँ, आप टेंशन ना लें प्लीज। टेंशन लेना आपके लिए मुनासिब नहीं। ठीक है। ये कौन है? ये लड़की आप जानते हैं? लगता है तुम्हारी पसंद है। अब्बू आपको लगता है कि मैं बहुत तस्वीर से भी ज्यादा प्यारी है। आप पहचान गए? क्यों मैं अंधा हूँ क्या? इतना कुछ देखने के बाद भी उसे न पहचानो? लेकिन अब्बू आप। तुमने बात की इससे? कौन सी बात? रिश्ते की बात, मतलब शादी की। जी कहें, क्या काम है? माफ कीजिएगा मोहतरमा, मैं 5 सालों से ईरान में नहीं थी, तो इसलिए डॉक्टर रसूली के पुराने घर का नंबर मेरे पास नहीं है। क्या आप मुझे उनके नए घर का नंबर दे देंगी? डॉक्टर अभी वार्ड में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। एक मरीज का ऑपरेशन है, उसे देखने के लिए गए हैं। कौन से वार्ड में? मेडिकल वार्ड में। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अजीमी साहिबा, आप क्या करना चाह रही हैं? मैं बस थोड़ी ही देर में डॉक्टर को लेकर आ रही हूँ, आप परेशान ना हों। शीरीन ने आपसे कुछ कहा है? तुम भी मेरी तरह झूठ नहीं बोल सकते। अब्बू मेरे दिल में बस एक एहसास, कैसे कहूं, बस एक खास किस्म का एहसास हुआ है और कुछ भी नहीं। इश्क हुआ है। मुझे लगता है एक तरफा चाहत है। तुम मुतमईन हो? कैसे हो बूढ़े? तुम ये सोचते हो कि घर जाकर आराम करूं? डॉक्टर साहब, मैं और आप तो हम उम्र हैं, फिर भी आप मुझे बूढ़ा कह रहे हैं। बहुत खूब, मगर मैं तुमसे ज्यादा जवान हूँ। कितने साल के हैं? 69 साल का। मैं 63 साल का हूँ, आपसे ज्यादा जवान। बहुत खूब। आज की रात हमारे यहाँ रुकना नहीं चाहोगे? जब मैं ठीक हूँ तो आज की रात इस बेड को क्यों घेर के रखूं? हाँ ये बात तो है, लेकिन हम और तुम हम उम्र हैं, किसी वक्त भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है इससे? मजीद हम कितने साल जिएंगे? अच्छा चलो तैयार हो जाओ, कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता हूँ। आखिर आपने अपनी जिद पूरी कर ही ली। मुर्तजा यज़दान पनाह रिलीज हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 48 घंटे तक ख्याल रखिएगा उनका। जी बेहतर। आपके अब्बू आईसीयू से डिस्चार्ज हो गए हैं। खुदा का शुक्र है। हम मिल सकते हैं? जी जरूर। वो लेफ्ट साइड वाला रूम है ना? जी हाँ। डॉक्टर फारूकी से गुजारिश है वार्ड नंबर 10 में तशरीफ ले आएं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जान आप ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत तकलीफ उठाई मराल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब्बू चाहते हैं कि कल शाम आप हर हाल में हमारे घर तशरीफ लाएं। ना मत कीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। जी जरूर। चलें कल बाबा। मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल शाम आ रही हैं ना? मैडम ये मशरकी एरिया। आप आराम से चलाएं, मैं खुद देख लूंगी। ब्लॉक नंबर क्या है बताएंगी? ब्लॉक 16।
जी, ये रहा ब्लॉक नंबर 16। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट रुकिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। देखिए खुल गया। नहीं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। ऊपर आइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। आइए आप मेरे साथ ऊपर चलें। शुक्रिया। जी ऊपर चलें। बस थोड़ा ऊपर। आपके आने का शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी इस तरफ जाना है। आप आराम से ऊपर चलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तशरीफ अस्सलाम। लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बाबा कहाँ हैं? कमरे में है। मैं मिल सकती हूँ उनसे? अरे क्यों नहीं, आइए। लीजिए, वो खुद आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। आपको किसने बताया कि ये फूल मेरी पसंद के हैं? किसी ने नहीं। शिरीन बेटा, मराल साहिबा को रूम में बिठाओ। आइए। जी आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल। मैं अभी तक नहीं समझ सका कि तुम्हें किस किस्म के फूल पसंद है। वही जो आपको पसंद है। जाओ मेहमान के पास बैठो, मैं दवा लेके आता हूँ, फिर बात करता हूँ तुम लोगों से। जी ठीक है। हमीद जी बोलिए। इसको गुलदान में रखवा दो। जी जी जाओ। ठीक है, बेहतर। जलाल जी बोलिए। तुम जरा अब्बू का ख्याल रखो कि सिगरेट ना पीने पाए। तुम्हें क्या लगता है बाबा को ये फूल पसंद आए हैं क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, पर मैं मुतमईन हूँ। बस इरादा तो कर ही लिया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाबा इस इरादे से राजी होंगे। तुम्हें कैसे पता चला? बाबा के रवैये से, उनका इस तरह बात करना और देखना। लड़की तो बहुत अच्छी दिखती है, तुम्हें नहीं लगता क्या? तुम मुझसे पूछ रही हो? वैसे हम शुरू से ही हम ख्याल है लड़की अच्छी दिखती है। गुलदान, मेरे साथ आओ। गुलदान वहाँ नीचे वाले कैबिनेट में रखा है। तुम यहीं पे रुकना, जाना नहीं। वैसे ही वक्त तो नहीं है बात करने का, लेकिन दिल चाह रहा है कि तुमसे कुछ पूछ लूं। मेरी अम्मी से तुम्हारी बात तो हो गई है, तुम समझ गई हो कि वो क्या चाहती हैं। वो मुखालफत नहीं कर रही। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, क्यों? तुम बहुत अच्छे हो हमीद, बहुत अच्छे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ।
मैरी, मैरी रुक जाओ। मैं माजरत चाहता हूं मैरी, खुदा की कसम अगर मुझे मालूम होता कि तुमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है तो मैं नहीं पूछता कुछ। मैंने सोचा कि मैं पीछे नहीं हटी हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुमने वाकई फैसला कर लिया है तो मुझसे क्यों नहीं कहा? अभी नहीं कह सकती, बाद में। बाद में कब? शायद कल या शायद परसों, मुझे नहीं मालूम। कहाँ चली गई थी? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माफ करना, देर हो गई। ये लीजिए। शुक्रिया। ये लीजिए अबू। आप नहीं लेंगे? क्या हुआ? मैं जरा आता हूं। मरार साहिबा, आप सिर्फ 2 बहन हैं? नहीं, एक भाई भी है मेरा, मेहरदाद, मगर वो ईरान में नहीं है। कहाँ रहता है वो? इस्तांबुल। अभी गया है? नहीं, कई साल पहले शिफ्ट हो चुका है। काम के लिए गया है या सियासत की वजह से? सियासत की वजह से। अच्छा, आपसे फोन पे बात होती है? बहुत कम, साल में 1 आध बार। ठीक है। आप सिर्फ लिखती हैं या इसके अलावा कुछ और भी करती हैं? जी, हफ्ते में 1 बार पेंटिंग की क्लास रखती हूँ। सिर्फ यही? जी। बहुत अच्छा। शरबत पिए ना आप? जी बेहतर। आज की रात आप हमारे यहाँ आई हैं, मेकअप नहीं किया आपने? या जहाँ भी जाती हैं ऐसे ही जाती हैं हमेशा? ऐसे ही जाती हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो अपना वक्त आईने के सामने जाया करूँ। मैं अक्सर वक्त लिखने में लगाती हूँ। बहुत अच्छे। हामिद बता रहा था कि आपने जवानी से अब तक जितनी भी किताबें खरीदी हैं उनको बहुत पढ़ा और काफी एहतियात से संभाली हुई हैं। आपके किताब खाने में बहुत नफीस किताबें मौजूद हैं। बदकिस्मती से मैंने कोई जायदाद, दुकान, जमीन नहीं खरीदी जो विरसे में दे जाऊं। मेरी मिरास बस यही किताबें हैं। पता नहीं मेरे बाद मेरी औलाद इसकी हिफाजत करेगी भी या नहीं। क्या मैं इस मीरास को देख सकती हूँ? क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। आप चाय अभी लेंगी या कमरे में रखवा दूं? दे दीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। माफी चाहती हूँ। ये मेरी मीरास का एक हिस्सा है। बाकी किताबें प्रेस के स्टोर में हैं। कितनी नायाब किताबें हैं आपकी। मैं इस मीरास की हिफाजत की जिम्मेदारी लेती हूँ। किताबें अच्छी लगी आपको या पसंद नहीं आई? नहीं,
जो भी किताब आपको अच्छी लग रही वो उठा के आप पढ़ सकती हैं। नहीं, मैं अब जाना चाहूंगी। जा रही हैं? मगर कहाँ? खाना तैयार हो चुका है। फिर किसी दिन जब आप सब ठीक होंगे। मगर हम सब तो ठीक हैं। नहीं, मेरे ख्याल में महरी की हालत आज रात ठीक नहीं है। आप सब उसके पास जाएं, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, महरी बिल्कुल ठीक है और वो तो आपके लिए खाना लगा रही है। कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें, मैं चलती हूँ। मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। महरी जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है, फिलहाल उसकी बीमारी ज़हनी है, वो जल्द ठीक हो जाएगी। वो ठीक तरह से अपनी मुश्किल अभी बता नहीं पा रही है। कैसी मुश्किल? वो बात मैं आपको खाने के बाद बताऊंगा। ये लो। तशरीफ लाइए, आइए बैठिए। ये लीजिए, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी है क्या? किस चीज की? घर जाने की? नहीं तो क्या मैं इस वक्त आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ? कैसी दरख्वास्त? मैं जानता हूँ हमारी फैमिली से एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और हमारी ज़िंदगी भी एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन आपसे मिलकर सब खुश हुए हैं। हकीकत इसके बरक्स है, मेरे ख्याल में आपके अबू मुझसे मिलकर खुश नहीं हुए। शायद, हो सकता है, लेकिन वो इतने समझदार हैं कि मेरे एहसासात को समझ सकते हैं। मुझसे शादी कर सकती हैं? आपने बीवी को तलाक दे दी है? मैंने अब तक शादी ही नहीं की है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? क्यों नहीं? जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं 15 साल का था, महरी 9 साल की थी और शीरीन 1 साल की थी। इस दौरान अब्बू के काम बहुत फैले हुए थे। अखबार शाया करना, किताबें छापना उनके हाथ में था, लिहाजा उनके पास वक्त ही नहीं था बच्चों की तरबियत के लिए। इसीलिए मैं अपने घर में माँ बनकर रहा। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप को भूल गया। जवाब देने में जल्दी ना कीजिए, मैं इंतज़ार करूँगा। खूब सोच लें फिर जवाब दें, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। جهانم شکل خوابه، عذابه، استرابه، دیواری از مه، دیواری از سنگ، روبرو دیواری از مز، دیواری از سنگ. بگو بیهوده نیست، بیهوده نیست فاصله آب و سراب. بگو سپیدی کاغذ بیهوده نیست. بگو از کوچه پراکنده فقط کابوس و تنهایی. بگو خواب هرچی که دیدم افسانه بود، هرچی شنیدم. دل زدن به دریا بران شد مرگ تدریجی رویا، مرگ تدریجی رویا. عذابه